ओके, तो कल हम डिस्कस किया है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब ये था कि there should be proper administration of public sector organization financial affairs, or the public sector organization must appoint a CFO or two other officers along with him. One the head of paid services, and the second one was the monitoring officer. So that's what we discussed yesterday. और फिर हमने ये बात की थी कि that जो CFO है, he will be required to confirm on comply and explain basis कि local authority जो है that meet the requirement of certain statutory code of practices. जो 3 code of practices की हमने बात की थी, एक prudential code of capital finance, and second was public service code of practice, third was the code of practice on local authority accounting. मकसद इनका था इसको कंप्लाई करने का कि he is making declaration by confirming the compliance with the code that he has the opportunity to raise concern जहाँ पे he feels के organization is not complying with the code, and in case of any difficulty he can have a support from the CIPFA wherever required. तो हमने कल यहाँ तक बात की, and we're going to move forward from this point. और उसमें ये हम बात कर रहे हैं इसमें the leadership in the public finance. अच्छा, अब बताया गया है कि डिफिकल्ट इकोनॉमिक क्लाइमेट है, 2 वजह से बताया गया है कि एक तो इवेंट ऐसे हुए हैं रिसेंट पास्ट में जिसमें क्राइसिस, फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस 2007-8 में, फिर पेंडेमिक, फिर ये अभी पॉलिटिकल वॉर्स वगैरह जो हैं, तो डिफिकल्ट इकोनॉमिक क्लाइमेट में दे CFO need to challenge the status quo and need to develop strategically aligned finance function, or should contribute solid input to the development of strategy of the organization, and he should act as a major force in the implementation of that strategy, and need to alignment जो है, that's not necessarily required adding new function, rather going deep and broad in the traditional role, or providing the strong leadership by the CFO. This is what it is. So now, what is the leadership actually? Good leader can engage in debate frankly and thoroughly, knowing that at the end, he and the other side will be more closer and thus emerge stronger. You don't have that idea when you are arrogant. तो लिहाजा एक लीडर को arrogant, superficial और uninformed नहीं होना चाहिए. This is the wording of Nelson Mandela about the leadership. And the leadership also defined by British Army as a combination of character, knowledge, and action that inspire others to succeed. And there is also Hanley Management School here. So they are putting the Hanley Management College. They have also defined the leader who can think with clarity and act with the confidence and conviction. This being said, a CFO should be a leader. Okay, so leadership in finance जो है, CFO की बात कर रहे हैं. This is a very crucial aspect. He should be leader, having the ability to motivate, support, and exert personal influence, not threaten and coerce. Whenever there is a requirement, he should be providing, he should be motivating, providing support, exerting his personal influence to achieve certain goals, objectives, lead a team. It becomes popular to attempt to distinguish managers and leaders in terms of their activities, their behavior, and the traits they display. It has particular stress in the field that consider organizational changes. जब एक organization change में से गुजरी होती है,
तो सर लीडर का रोल होता है to lead the change at the highest level and manage the lower level day-to-day task is being completed timely when change is going through. This is the role of a leader. Particularly इसको change management में ज़्यादा टेस्ट होता है लीडरशिप की जो ट्रेड्स होती हैं, उसकी स्किल और एबिलिटी जो है. इस बार often the case कि individual were promoted into leadership roles and they just continue to carry the management activity still. This is basically not the right thing, right? So it's leadership, not just the progression, promotion, but the role with very different emphasis and skill are needed from a leader. So that's the message is leadership defined की और कहा कि finance manager has to play the role of a leader. और leadership management function में there are certain differences. Like there are 4 areas we're going to look at: creating the agenda, ताकि वो उस पर वर्क किया जाए, या creating the plan, developing people, execution of those plans, and getting the result of that plan. So there are 4 areas we are going to look at. So leadership में the leader establish the direction, vision of the future, develop the strategy for the organization, for change to achieve goal, and the second is aligning the people, communicate vision to those people, strategy those people, create influence on the team, which accept the validity of the goal, ownership of that goal, and execution means motivating and inspiring, energize people to overcome obstacles which come in the way of achieving the objective and plan, and satisfy human need. ताकि वो जो उनसे बेनिफिट लेने वाले लोग हैं जिनको उसका स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन का बेनिफिट जाना चाहिए, दे नीड टू बी सेटिस्फाइड, जो स्टेक होल्डर्स हैं. एंड आउटकम क्या है कि आउटकम ऑन द चेंज इज प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड समटाइम ड्रामेटिकली डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट चेंज. जबकि मैनेजमेंट फंक्शन में डेवलपिंग द प्लान एंड बजट, just deciding the action plan, timetable, and allocate the resources, much lower focus than the leader in creating the agenda. When it comes to developing people, so they organize the staff, recruit them, and place them, and they decide the structure and collate staff, develop policy for them, procedure for them, and monitor them. So this is the developing people area. HR area में execution, they just monitor the result, again the plan, and take the calculate the variances and take the corrective action. This is the management function, and the outcome is they consist on they focus on consistency, they produce order, consistency, and predictability. That's what the role of management is. So this is basically we're distinguishing between the role of leader and a manager. Chief Financial Officer must be a senior, going to talk about now CFO, must be a senior finance person responsible for leading and directing the financial strategy of the organization and the operation of that strategy. CFO may have a different job title, job description, he may be known as a different title like Director of Resources, Director of Finance instead of CFO. This person is responsible for establishing strong framework for implementing and maintaining good financial management across the organization. So he is responsible for implementing and carrying out this good financial management. CFO responsibility ensure that the organization control and manage money well, and the strategic planning and decision making is supported by sound analysis, which he provides to them who take the decision. Other responsibilities CFO may include applying strong internal control in all areas of financial management, risk management, and asset control. And the second function could be implementing effective system of internal control that include standing financial instruction, operational manual, and compliance code of practice. Purpose is to secure probity, honesty in operation. Implementing appropriate measures to prevent
and detect frauds and corruption. This is the role of finance manager, CFO as well, and is also the role to support the organization. इंटरनल ऑडिट अरेंजमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो दोनों केसेस में अगर वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसको रिपोर्ट करता है डायरेक्टली या चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, बोथ केसेस में he should support the organization internal control arrangement. These are CFOs. ये पहले वाला मैन्यू फाइनेंसिंग है, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, वो सेटिंग किया ना ऊपर, उसके बाद ये एरियाज उसके आ जाते हैं। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑलरेडी डिस्कस के उसमें कंट्रोल एंड मैनेज द मनी वेल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय गिविंग देम द प्रॉपर एनालिसिस। तो बाकी अदर फंक्शन ये उसके आ जाते हैं। अच्छा, अब रोल ऑफ सीएफओ जो है, ये लोकल गवर्नमेंट जो है, मैंने कहा था ना हम कभी गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के एंगल से देखते हैं, कभी एनएचएस के एंगल देखते हैं, कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एंगल से देखते हैं, कभी डिवॉल्व जो रीजन है स्कॉटलैंड, आयरलैंड या वेल्स, उसके एंगल से देखते हैं। तो वी आर सेइंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरर। इसको पहले ट्रेजरर कहा जाता था, जब हमारे यहाँ इसको मुंशी कहा जाता था। तो दुनिया में जब ट्रेजरर था तो ट्रेजरर की जो right was developed by the case law in England and Wales in Attorney General versus D. Winton 1906. It was established that they are not merely a servant of the authority, local authority, but hold the fiduciary responsibility to the local taxpayer. What does fiduciary responsibility mean? He has the legal duty as a part of his job to act solely in other parties' interest, जैसे दूसरे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में इसको वर्क करना, not for his own interest. सेक्शन 151 हमने ऑलरेडी बात की थी, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसमें वो सीएफओ की अपॉइंटमेंट, सीएफओ जो ऑफिसर है, सेक्शन 151 ऑफिसर को सीएफओ कहते हैं, require authority to make arrangement for the proper administration of financial affairs. मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर भी इसी की बात की थी, and appoint the CFO to have a responsibility for looking after these arrangements. Under the Local Government Finance Act 1988, the CFO must also be qualified accountant. ये लोकल अथॉरिटीज के अंदर क्वालिफाइड की बात की गई। आगे आपने देखना है कहाँ क्वालिफाइड की बात नहीं है, कंपल्शन नहीं। सेक्शन 95 local government Scotland requires the local authority to make arrangement for the proper administration of financial affairs and appoint the CFO to have the responsibility of those arrangements. CFO duty in England and Wales was significantly extended by Section 114 of the Local Government Finance Act 1988, which required a report to all local authority members to be made by that CFO in consultation with the monitoring officer and head of paid service जो दूसरे अदर हैं. If there is are likely to be unlawful expenditure or budget that cannot be balanced with the reserve. अच्छा, एक बजट जो है वो अपना सस्टेनेबल होना चाहिए, जितना रेवेन्यू उतने एक्सपेंस। अगर शॉर्टफॉल है तो उसका जो रिजर्व पड़े हुए हैं उसमें से कुछ ला के पूरा किया जा सकता हो तो फिर लॉफुल है, अदरवाइज लॉफुल नहीं है। अगर रिजर्व जो है वो सेम बैलेंस को फिल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा रिजर्व में एडुकेट रिजर्व फ्यूचर में छोड़ने होते हैं, ये नहीं कि सारे रिजर्व ईटा पकड़ने। एडुकेट रिजर्व फॉर फ्यूचर ये टू बी लेफ्ट। मैं इसमें बेशक थोड़ा यूज कर लें। Local Government Act 2003 required the CFO to report on the robustness of the budget and on the adequacy of proposed level of financial reserve in future period time. जनरल पब्लिक है ना, लोकल अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वो जनरल पब्लिक है, ठीक है। दो लेवल हो गए ना, एक उनके जो काउंसलर वगैरह हैं वो तो बोर्ड हो गया, और फिर तो जो उनसे रिपोर्ट सेट करनी होती। ओके, हेल्थ अब हमने लोकल अथॉरिटी कर ली, अब हम हेल्थ को देखते हैं।
इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड मैंने कल कहा था 2022 में एस्टैब्लिश हुए हैं, जिन्होंने वो जो है क्लिनिकल केयर ग्रुप्स को उन्होंने कंसल्टेटिव ग्रुप्स को रिप्लेस किया था। तो 1 जुलाई से ये इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड आ गए, and there are 42 intercare board covering that are largely in line with the upper tier are unity local body authority। हमने कहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, एक कुछ अपर लेवल होता है मेट्रोपॉलिटन या उस लेवल, और एक हमने कहा तो होते यूनिटी, उसके 2 टियर नहीं होते। तो जो कह रहे हैं या तो ये अपर टियर या यूनिटी लोकल अथॉरिटी बाउंड्री इनकी होती है। ईच आईसीबी हैज अ यूनिटी बोर्ड, यानी एक उसका बोर्ड होता है, इसमें सारी पावर उसी तरह होती है, कुछ सेकंड लेवल का कुछ नहीं होता। मस्ट हैव अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अ मेंबर ऑफ दैट बोर्ड, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। एनएचएस पॉलिसी पोजीशन इज दैट द अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेंसी रिक्वायरमेंट जो है is essential requirement of CFO and was unclear whether the individual has to be qualified or not। वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट होगा या नहीं होगा ये क्लियर नहीं है, नथिंग इज मेंशन देयर। एनएचए फाउंडेशन ट्रस्ट जो हैं ये भी हैं, और इसमें मस्ट अपॉइंट द सीएफओ एज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन लॉ कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड अकाउंटेंट हो। एंड legislation stipulate that only one of the registered director, अच्छा जो लीगली रिक्वायर्ड है वो ये है कि उन डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर या डेंटिस्ट होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ होनी चाहिए। ये तो कंपल्सरी रिक्वायर किया बोर्ड में। बाकी के लिए उन्होंने कहा है कि बोर्ड के मेंबर जो हैं दे शुड हैव एप्रोप्रिएट स्किल एंड नॉलेज टू फिल देयर रोल। कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताई, जबकि सिर्फ 2 के लिए क्वालिफिकेशन बताई है उसमें। पुलिस के केस में यह है कि पुलिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2011 रिक्वायर्स every police and crime commissioner outside London other than London to appoint a CFO, जबकि within Greater London ये responsibility to appoint CFO is rest with the mayor office for policing and crime and the commission of the metropolis by section 127 of the Greater London Act 1999। So under the same act ये जो ऊपर बात की है, चीफ कांस्टेबल जो हेड होता है काउंटी का डिवीजन जिसको हमने कहा था पाकिस्तान के सेंस में, इज आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट सीएफओ। द पुलिस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट 2011 रिक्वायर्ड बोथ सीएफओ टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट प्रोविजन विद द लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसके ऊपर हम एक्ट्स की बात की हैं, उसके साथ उसको कंप्लाई करना है अपने रोल के हिसाब से। फर्दर एजुकेशन का मामला है, इसमें जो एजुकेशन कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह इस तरह के हैं, देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द फर्दर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट सीएफओ। लेकिन चार्टर्स या स्टैट्यूट या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थ्रू व्हिच द इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑफ्टन रिक्वायर्ड सर्टेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड। एक ऑफिसर की तो बात हमेशा की जाती है, प्रिंसिपल, लेकिन सम टाइम बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की भी बात करते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या स्टैट्यूज हैं या चार्टर हैं, इन प्रैक्टिस मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज अपॉइंट अ फाइनेंस प्रोफेशनल एंड अजा इसको आउटसोर्स करते हैं बाय द रिक्वायर्ड सर्विसेज। जरूरी नहीं कि वो इन हाउस एम्प्लॉय हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी या किसी इंडिविजुअल को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं वो काम करने के, राइट। ये फर्दर एजुकेशन पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट नो एप्लीकेबल लेजिस्लेशन फॉर इंग्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट इक्विवेलेंट टू सेक्शन 151 जो सीएफओ अपॉइंटमेंट की बात करता है ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1972। एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सीएफओ लो, राइट। होते हैं लेकिन कोई उसके लिए कि लॉ ने रिक्वायर किया है या गुड प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकते हैं। चैप्टर 3 ऑफ द ट्रेजरी डॉक्यूमेंट जिसका नाम है मैनेजिंग पब्लिक मनी आउटलाइन द ईच परमानेंट सेक्रेटरी इन द अकाउंट इज एन अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर देयर डिपार्टमेंट, राइट। जो भी परमानेंट सेक्रेटरी है वो उसका रोल अकाउंटिंग का भी है। डायरेक्टली अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर पब्लिक स्पेंडिंग एंड अकाउंटिंग ऑफिसर, जरा गौर से सुनेगा, अकाउंटिंग ऑफिसर who is a permanent secretary has the right to object formally to a ministerial decision to spend money if it does not meet the treasury criteria of regularity, the propriety, value for money and feasibility। तो इनसे लैक करे वो स्पेंडिंग डिसीजन
so you can object. If spending decision breaches, ये बात है कि फिर क्या होता है जब object करता है. If spending decision breaches any of these criteria, the accounting officer of the permanent secretary must ask for written direction to continue from the Secretary of State. कि जनाब मैं आगे साइन कर दूं, आगे चीजों को बढ़ा दूं. So if such ministerial direction is received, the accounting officer then implement the decision. Expenditure होने देता है, but it is the minister who bears the responsibility for the use of public money. अगर उसके misuse होता है या उसका consequences ठीक नहीं होते, then minister would be responsible for that. Academy जो हैं, वहाँ academy एजुकेशन में है, तो जो कि उसकी जो फाइनेंशियल हैंडबुक है, जो कि एजुकेशन फंडिंग एजेंसी ने सेटअप की है, जिसमें सर्टेन ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ एकेडमिक ट्रस्ट विच हैज अ फंडिंग एग्रीमेंट विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन. तो क्या होना चाहिए, एकेडमी ट्रस्ट मस्ट, अगर वो कंपनीज हैं, प्रोड्यूस ऑडिटेड कंपनी अकाउंट्स. अगर वो चैरिटीज हैं तो दे शुड मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर एंड पब्लिश द अकाउंट इन लाइन विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय द चैरिटी. उस रिक्वायरमेंट जिसमें मेंशन है उसको कहते हैं सॉर्प, स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस. यानी चैरिटी को स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है. उसमें सब मेंशन है, अकाउंट्स का प्रोड्यूस होने हैं, ऑडिट किसका करना है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. कल मैंने कहा था बहुत बड़ी चैरिटी को फुल ऑडिट कराना होता है, स्मॉल चैरिटी को इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना होता है, वेरी स्मॉल को सिर्फ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं. राइट, एज ए पब्लिक बॉडी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं, इंश्योर द रेगुलरिटी, प्रॉपरिटी एंड वैल्यू फॉर मनी इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड. तो ये रिक्वायरमेंट दी गई है फाइनेंशियल हैंडबुक में. द एकेडमी ट्रस्ट मस्ट डेजिग्नेट ए नेम्ड इंडिविजुअल, नॉर्मली द प्रिंसिपल, एज द अकाउंटिंग ऑफिसर. दिस पोस्ट कंफर्ट responsibility for financial administrative matter on that individual. This is a vital role as the accounting officer is personally responsible for the governing body, to the governing body. So for ये 6 चीजें लिखी हैं, ensuring the regularity and propriety, avoidance of waste and extravagance, the day-to-day organization affairs, prudent and economical administration in the organization, efficient effective use of available resources, and staffing and management of the proper staffing and management of that academy. So these are basically responsibility जो कि governing body को पूरे करने के लिए अकाउंट फॉर करता है, अकाउंटेबल है the accounting officer. Okay. अब चैरिटीज की बात हो रही है, इसके अंदर charity appoint their trustee under the rule made by the charity commission. क्योंकि आपको कहा था कि चैरिटी कमीशन जो है वो सारी चैरिटी के ऊपर जुडिक्शन रखता है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग पे और विद इन द लाइन ऑपरेशन पे. देयर आर रूल अराउंड एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी. तो वहाँ ट्रस्टी डायरेक्टर की तरह होते हैं, वहाँ ट्रस्टी होते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ रूल दिए गए हैं. But there is no legal requirement for a charity to have a qualified accountant as a trustee or have a role specified as a finance director. The charity is free to choose to appoint any trustee who are eligible. Eligible का है कि वो mature हो, eligible है, bankrupt ना हो, insolvency ना हो, और कुछ mal practices या performance की वजह से वो company director बनने से नाअहल ना हुआ हो, और फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया मीट करता हो, तो उसको आप ट्रस्टी बना सकते हैं. ट्रस्टी डू हैव द ड्यूटी टू हैव ए नेसेसरी स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द ट्रस्टी. राइट, तो ये जरूर है कि चैरिटी जो है उनकी ड्यूटी है कि उनके जो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट हैव ए एप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एज ए ट्रस्टी. तो जाहिर अगर आप किसी ट्रस्टी को फाइनेंस का एरिया देंगे तो जाहिर उसका फाइनेंस का एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज फिर होना चाहिए. द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप ऑफ द ट्रस्टी. सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लेड आउट इन द चैरिटी सॉर्प. ये जो पहले मैंने बात की थी, चैरिटी स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस. राइट, हमारे यहाँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, आप इप्सास हैं,
पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर के लिए IFRS है, लेकिन चैरिटीज के लिए IPSAS और IFRS नहीं है। उसके लिए ये शॉर्ट में स्टेटमेंट ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड। ओके, ओके, तो वी आर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है देयर नो इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन लाइक लोकल अथॉरिटी एक्ट और सिमिलर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं है कि जो स्टिपुलेट करे कि CFO मस्ट बी अपॉइंटेड। कंपनी एक्ट 2006 वहां पे है, 2013 में उसमें अमेंडमेंट लाई गई है। आइडेंटिफाई द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटेड डायरेक्टर। A specific role for CFO is not a legal requirement as far as the Company Act is concerned. However, the large organization, particularly listed company which are on the stock exchange, are highly unlikely that they would not be appointing the finance director or finance CFO. उनके होते हैं। The legal responsibility of CFO in a limited company would be the same as those of the other appointed director. तो जिस तरह दूसरे डायरेक्टर की है उस तरह CFO की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो है यूके का 2014 जो है, उसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई एंड एक्सप्लेन जब है, जब अकाउंट पब्लिश किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लाई एंड एक्सप्लेन को कल हमने डिस्कस किया था कि जो जो रिक्वायरमेंट है आपने कंफर्म करनी होती है, कंप्लाई कर ली, जो कंप्लाई नहीं हो रही उसकी रीजन बतानी होती है, एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों नहीं और कब हो जाएगा। ठीक है, द कोड डज नॉट स्टेट दैट द फाइनेंस डायरेक्टर must be appointed, but does refer to the board being made up of the appropriately qualified and experienced individual. तो इस तरह वो फिर फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो फिर का रोल आ जाता है। पाकिस्तान के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है 2019 जो है उसके अंदर CFO का बाकायदा क्राइटेरिया है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो और अपॉइंट होना है, और बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसने काउंटर साइन करना होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात साथ ही मैंने कर दी। अच्छा, यू आर इस पेपर में free to talk about something if you know about Pakistan, तो you should be, क्योंकि आप देखेंगे ये US इंटरनेशनल बातें हो रही, आप ला सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट है, उससे रिलेटेड रेलेवेंट कुछ चीज आपके ध्यान में आती है, यू शुड मेंशन दैट, राइट। तो इसलिए वो आपने यही नहीं कि यूके में करना, जहां भी रेलेवेंट आपको मिले वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एज। ओके, ओके, अब CFO के रिलेशनशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। CFO मस्ट डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद अदर सीनियर ऑफिसर जो हैं कंपनी के, जैसे डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। द रोल ऑफ CFO इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसका रोल बहुत फंडामेंटल है। देयर आर टू मेन रोल। स्टीवर्डशिप ऑफ प्रॉपर्टी का रोल है, और स्टीवर्डशिप है कि जो फंड उसकी डिस्पोजल पे हैं प्रॉपर्ली स्पेंड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी है कि ऑनेस्टली स्पेंड हो रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट नहीं है उसमें, और परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट वैल्यू फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्स। यानी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, मोस्ट वैल्यू इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज। टू डिलीवर दिस रोल द CFO मस्ट हैव अ सीनियर स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वरना वो परफॉर्म नहीं कर सकता थ्रू मेंबरशिप ऑफ द लीडरशिप टीम। तो लिहाजा उसे लीडरशिप टीम का पार्ट होना चाहिए, राइट। तो इसलिए जितने बोर्ड्स होते हैं इसके अंदर CFO का बैठना बहुत जरूरी होता है, हैज टू बी प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। दिस मे बी a board, senior management team, executive groups or other similar groups of senior officers, उसका पार्ट होना चाहिए। Okay, so CFO should have a close working relationship with the chief executive of the company और अदारा जो भी है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात हो रही है, and the board or elected member to ensure the financial impact of any strategic decision is being considered as a key part of the decision making process.
Okay. So he should lead on engagement with the stakeholder. हमने कल stakeholder engagement, stakeholder consultation की बात की थी. Stakeholder engagement में he should lead where the financial decision affect the key services or where the proposed service changes will have a significant financial impact. उस केस में उसको lead करना चाहिए stakeholder engagement में. He should develop their role to ensure appropriate oversight of the major project जो undertake किए गए जिनमें significant financial commitment आई है और जिसके significant financial implication हो सकती है, तो उसमें उसे अपना रोल प्ले करना चाहिए. appropriate oversight का रोल जो है. Develop a good relationship with the relevant auditors and inspector, internal हो, external हो. इंस्पेक्टर जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, वहाँ पे FRC कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल यूके में कहते हैं, और इसी तरह जो गवर्नमेंट के रेगुलेटर और जो इंस्पेक्टर हैं उनकी बात हो रही है. टू एस्टैब्लिशिंग साउंड सिस्टम इंटरनल कंट्रोल and being open and transparent about how the transaction being recorded and reported and how the financial decisions are being made in the organization. तो इसमें अपनी गुड रिलेशनशिप से इसे जो है ये चीजें इंश्योर करनी होंगी. ओके. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंटेंट है. ये जितनी दुनिया में अकाउंटिंग बॉडीज हैं, लाइक इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान, इसी तरह सिक्फा, इसी तरह ICW, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ आयरलैंड, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है. तो सारे जितने इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो प्रोफेशनल बॉडीज आपके हैं वो इसकी मेंबर हैं. दे हैव आइडेंटिफाइड 5 प्रिंसिपल रोल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ CFO. अब CFO पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी. बी ए effective organizational leader and key member of the senior management. पहले भी हमने कहा कि उसको senior management का पार्ट होना चाहिए. Balance the responsibility of stewardship with the business partnership. ये business partnership हमारा एक concept आ जाएगा. एक तो CFO जब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है, ब्रॉडर जा रहे हैं, तो उनमें एबिलिटी हो कि एडवाइज कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ इश्यूज के अंदर. अच्छा. Act as an integrator and navigator for the organization, be effective leader of the finance and accounting function, bring professional quality to the role and to the organization. So while primarily private sector organization is के लिए है, लेकिन it also has a cross reference in the first statement, और इसी तरह ये पब्लिक सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी is being applied and developed as a guide, particularly for the public sector. It is not a code of practice and not a legal requirement, but it is a good practice. ये चीजें जो ऊपर 5 कही गई हैं, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इनको फॉलो होना चाहिए. फिर सिफा ने एक स्टेटमेंट दी है. सिफा ने CFO रिलेशनशिप पे उन्होंने डिफाइन किया है 5 की प्रिंसिपल CFO के लिए, रोल ऑफ CFO. नंबर 1 इज द की मेंबर ऑफ द लीडरशिप टीम. पहले भी बात हुई है. हेल्पिंग टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी एंड टू रिसोर्स एंड डिलीवर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबली एंड द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. ये उसका पहला रोल है. पहले भी बात हो गई है. Geneva IFAC ने यही कहा. Must be actively involved and able to bring influence to bear on all material business decisions. और शॉर्ट टर्म इमीडिएट हो, लॉन्ग टर्म हो, उसकी इम्प्लीकेशन जो है, अपॉर्चुनिटी, रिस्क बढ़ हैं, दैट नीड टू बी फुली कंसिडर इन डिसीजन मेकिंग. और जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी उसको अलाइन करना है. कल बात हुई थी किससे अलाइन करना है. वेरी मच पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव होगा अपने, उसके ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना है. तो मस्ट लीड द प्रमोशन एंड डिलीवरी बाय द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट so that the public money is safeguarded at all time and used appropriately with the economy, efficiency and effectiveness. So he must lead and direct a finance function that is resourced to be fit for purpose. Right? So जो finance function है वो fit for purpose हो,
और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करता हो, मस्ट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड सुटेबली एक्सपीरियंस पर्सन। ये सिफा की स्टेटमेंट्स है। तो ये सिफा की जो स्टेटमेंट्स है, आपने देखा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली क्वालिफाइड की बात नहीं हो रही थी, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ला रही है एम्फोसिस के प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए सीएफओ, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर की। ओके। और पर्सनल क्वालिटी जो है सीएफओ की, सीएफओ एज द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल जो है वो चार्ज विद डायरेक्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Therefore, he occupies a pivotal role both for external stakeholders and within the leadership team of the organization. In the public service context, CFO must also meet the demand of openness and accountability. ये बहुत दो चीजें हैं, openness and accountability in decision making. He need to balance the competition of limited resources. Resources limited होते हैं, लेकिन lot of worthwhile objectives होते हैं, which require the resources to be allocated. तो उसे balance create करना होता है, so that the use of resources deliver value for money and safeguard taxpayers' money. Delivering these objectives requires a range of personal quality as well as the support from both the finance function, पूरी department team की तरफ से, and from the organization whole, उसको support मिलनी चाहिए. CIPFA statement lists the desirable quality of CFO, under which of the 5 principles as a part of your study you should read the generic CIPFA statement. मैंने कल आपको कहा था कि क्विकली कल भी 3 कोड आए थे, तो मैंने कहा जरा वो आपको लिंक मिलेगा, अपनी बुक्स में जाए तो जरा क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा, वरना सिंपल गूगल कीजिएगा आपको आ जाएगा, वो थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देख लीजिएगा। दैट वुड बी यूजफुल कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकेंगे जहां भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, ये प्रिंसिपल है मेन पर्सनल क्वालिटी जो सीएफओ में होनी चाहिए, उसको समराइज की गई है यहाँ कि वो लीडरशिप प्रोवाइड के, रोबस्ट और रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल लीडरशिप स्टाइल उसका होना चाहिए, और एबल टू मूव थ्रू विजनिंग द इम्प्लीमेंटेशन, कोलैबोरेशन, कंसल्टेशन के रिजल्ट में जो लीडरशिप रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करे, able to network and build robust relationship both internally externally with the relevant stakeholder, and should working effectively with other leadership team, जो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है तो उनके साथ, with political awareness and sensitivity, पब्लिक सेक्टर में इसलिए political awareness और sensitivity उसको पता होनी चाहिए कि कौन से काम किए जा सकते हैं, कौन से काम नहीं किए जा सकते, किसमें किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, और बिकॉज political sensitivity and awareness demand करती है। Address and deal effectively with the difficult situation and challenges, and to give and receive the constructive feedback. And he should be able to implement best practices in change management and leadership role में. He should balance the conflicting pressure and need of resources. उसमें trade off जो है बेहतर कर सकता हो, इसको कम कर लें, इसको इंक्रीज कर लें, राइट, इस पे कंप्रोमाइज हो जाए, उसके बदले में ये हो जाए। Innovate to add value and the good communicator होना चाहिए, maintain appropriate balance between the deeper financial aspect of the CFO role, and need to develop and retain a broader focus on the environment and stakeholder expectation and their need, act with integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality के साथ, having the professional behavior, and he should develop and sustain partnership and engage effectively in collaboration. Partnership का मतलब यह है कि जो सपोर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपनी टीम में भी कोई आउटसाइड कंसल्टेंट हैं जो रिटेन किए हुए हैं, या किसी और अथॉरिटी के साथ कोई अरेंजमेंट है कि कुछ लोगों को मिलके कर लेंगे, तो उसकी कोलैबोरेशन की बात हो रही है। एस्टैब्लिश एन ओपन कल्चर, built in effective coaching and no blame approach should be followed by him. Understand the personal and his professional strength. तो ये उसकी पर्सनल क्वालिटीज की एक लिस्ट बनाई गई है। तो इस लिस्ट को सामने रख के अपने आप के लिए टिक कीजिएगा
Are you there? Which is missing? So try to develop that. तो ज्यादा टिक कर दीजिएगा ना। बेहतरीन तरीका यही है कि बड़ा देखता है कि मैं इसमें से क्या डेवलप कर दूं फर्दर। ठीक है। नोट दैट दिस कोलैबोरेटिव वर्किंग इन्वॉल्व होती है इन मैनी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट मे अराइज फ्रॉम दिस कोलैबोरेटिव वर्किंग से जो अराइज होती हैं। CFO must develop skill and expertise in shared working। ये अगर दूसरी लोकल बॉडीज के साथ मिलकर कोई फंक्शन करने हैं उसकी बात हो रही है। फंक्शन मीन परफॉर्म करना की चीजों को, फंक्शन डजंट मीन इवेंट्स। इसी तरह अगर एक्सटर्नल कंसल्टेंट के साथ मिलकर करना है और या कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों के साथ मिलकर करना है, ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट and has access to suitable financial information and aware of the budgetary commitment of any as such arrangement, partnership arrangement जो है, and the financial implication of decision made by collaborative body that they are involved with, जिनके साथ ताल्लुक है। CFO must ensure that the medium-term business and the financial planning system, along with the ongoing performance monitoring, right, cover the service provided through the partnership and collaborative arrangements। सर्विस आई है उसको मीडियम टर्म बिजनेस इम्पैक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग के सिस्टम पे इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट, दैट शुड बी लुक्ड एट। इंश्योर दैट द प्रूडेंशियल financial network accurately reflect the commitment and potential future impact on contracted future services। ये जो मैंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है या आउटसोर्स किया हुआ है। प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पहले भी बात आई है प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के जो या ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रूडेंशियल से बात प्रूडेंट, हाँ प्रूडेंट जो एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर वर्क करना है उसकी बात है कि वो फ्रेमवर्क एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड फ्यूचर सर्विस। ओके, बी अवेयर ऑफ द, मतलब इन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा जहाँ प्रोजेक्ट अंडरटेक होना है हेल्थ में तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी लोकल अथॉरिटी इस रीजन की इस डिवीजन की, आई कैन बी पार्ट ऑफ दैट टीम to guide। ये कॉन्ट्रैक्टेड फ्यूचर सर्विस बात है। बी अवेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव सर्विस डिलीवरी मोड एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये चीजें जो हैं जहाँ कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है वहाँ बात हो रही है। तो आप ये देखें, ये पर्सनल क्वालिटी रिलेटिंग टू बिजनेस पार्टनरिंग, दिस क्वालिटी रिलेटिंग टू बिजनेस पार्टनरिंग, नोट ऊपर कर लीजिएगा। आगे बिजनेस पार्टनरिंग आनी है, ये बिजनेस पार्टनरिंग की तरफ वहां में लेके जा रहा है। okay? अच्छा, ये एक है एक्सरसाइज टू कंसोलिडेट द लर्निंग ऑफ द रोल ऑफ CFO। ये आपको कहा जा रहा है कि आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं, पर्सनल स्पेसिफिकेशन CFO मेजर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सामने लाएं और बनाएं कि उसके CFO की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। 500 वर्ड रिकमेंड किए गए हैं, उस पर सोचें। बल्कि उन्होंने तो अपने लिए रखा हुआ था कि उसको पोस्ट करवाते हैं सिफा के लर्निंग जो फोरम है उसके ऊपर, मुख्तलिफ लोग कमेंट करते हैं उस पर और मुख्तलिफ लोग उसमें एडिशन डिलीशन करते हैं। तो इन डेवलपिंग दैट यू नीड टू कंसिडर स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच द एप्लीकेंट विल नीड टू डेमोन्स्ट्रेट। तो उसके हिसाब से ये जॉब डिस्क्रिप्शन बन सकती है। तो अगर बनानी नहीं है तो काम हम देख लें। तो देखने का तरीका यह है कि आप जाएं, आप गूगल करें जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ चीफ फाइनेंशियल, तो कुछ कई टेम्पलेट्स आ जाएंगे आपके साथ। तो 2-3 को देखें जरा, जस्ट एक रोल के बारे में आपको जरा थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। लीडरशिप एंड नेगोशिएशन स्किल CFO में होनी चाहिए। नोट द लिस्ट ऑफ पर्सन जो क्वालिटीज हमने बात की है उन सबको ये रिपीट करेगा। प्रिंसिपल फॉर द रोल जो है प्राइवेट हो पब्लिक सेक्टर हो, रेफर रेगुलेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ द CFO। CFO मस्ट हैव एक्सेस टू एंड बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप टीम, भी आपने कहा है। और सारे जो डिसीजन है इंपॉर्टेंट जिसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है
और हाईएस्ट लेवल पे जो होते हैं उसमें उसे पार्ट ऑफ टीम होना चाहिए और एनालिसिस प्रोवाइड करनी चाहिए। सीएफओ अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर। क्यों इंक्रीजिंग प्रेशर? मैंने बताया कि ग्लोबल फाइनेंशियल डाउनटर्न जो है और लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं वो रिड्यूस बजट की वजह से और लिमिटेशन जो आ रही हैं उसकी वजह से, तो दे नीड टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड। तो इस वजह से उन पे इंक्रीज प्रेशर। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड नेगोशिएशन स्किल रिक्वायर्ड है, हमने बताया था। तो बोथ साइड वर्क क्लोजर, एरोगेंस की जरूरत नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए leadership and negotiation are required to be of the modern CFO to resist short-term pressure, especially where there are a political and social agenda. As the CFO has the responsibility to ensure financial viability and stability of the organization in longer term. गर्दन तो इसकी फंसेगी, इसलिए इसे जो है एक टैक्टफुली चीजों को जो नहीं होनी चाहिए उनको अवॉइड कराने की कोशिश करनी चाहिए टैक्टफुली। अदरवाइज जॉब पे प्रॉब्लम आएगा। वो भी हम कल आपको बता दिए हैं कि इनको 3 बंदों को रिमूव करना फुल प्रोसेस पॉसिबल नहीं, आपको कल बताया था। और फुल प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी कही गई थी। फिर बताया था कि सिफा जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, this is especially true in local government where the fiduciary duty is written in statute and there is no option to allow the organization to fail financially. अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली फेल होगी तो सीएफओ वुड बी अंडर प्रेशर। सीएफओ मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ लीडरशिप where the board member or the management team need to be persuaded to make brave and the unpopular strategic decision। यह नहीं है कि ऐसे डिसीजन लें जो इजी डिसीजन हैं और उनकी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाली। मे बी अनपॉपुलर डिसीजन, but he should provide them the strength and support for that। अच्छा, CFO must demonstrate political awareness, sensitivity। पहले भी हमने कहा था। and what will not be acceptable to decision making body, जो गवर्नमेंट हो सकती है, पार्लियामेंट हो सकती है और गवर्निंग बोर्ड हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। CFO must also adhere to the ethical and professional standard as stipulated by relevant professional body। सिफा के अपना कोड ऑफ कंडक्ट है और इस तरह सारे बॉडीज का है, आईफैक का भी है। These standards must be maintained and which may be particularly difficult if the organization desires are in conflict with those ethical standards। तो उसमें उसके रोल टफर हो जाता है, but ethical standard has to be followed। A SPFA offers support to members and organization in these instances जहाँ पे वो ethical standard compromise हो और वो अपना रोल प्ले करना चाहें, उनको difficult corner मिले, SPFA would be there to support them। है? हाँ, फिड्यूशियल ड्यूटी का मतलब है कि दूसरों के इंटरेस्ट को सामने, अपने इंटरेस्ट को फकीर नहीं। ऑर्गेनाइजिंग ए फाइनेंस फंक्शन, जन फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस का जो टीम है, there are many options for structuring a finance team। Variation will depend on the culture of organization, need of the organization, in some cases the geography, location, कि कहाँ है उसके टीम बैठी हुई है, कितनी दूर है, कितनी द स्पॉट है, and its customer, जो उसके स्टेक होल्डर है। कस्टमर मीन स्टेक होल्डर। A further factor is the cost। हाँ जी, आगे चलते कंटिन्यूस रहेगा, उसी फॉर्म में चलेगा। दे आर मैनी ऑप्शन का है। अच्छा, डिपेंड करता है वेरिएशन उससे जो है वेरी करेंगे वन टू वन। रीजन इज द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन सम केसेस द ज्योग्राफी ऑफ द यानी लोकेशन और स्टेक होल्डर। फर्दर द कॉस्ट फैक्टर है कि कुछ स्ट्रक्चर बहुत महंगे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड, तो उन्हें कंप्रोमाइज करके अपने नीड के अपने रिक्वायरमेंट के अंदर लाना पड़ता है। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑस्टेरिटी मेजर, इसलिए कहा था कि वो रोल टफर हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। And that continue to affect public service organization present the CFO and finance function with the unprecedented challenges and pressure। The finance team must perform the core accounting। पहली बात है, एक चीज तो उनकी कोर एरिया है, वो क्या है?
अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल फंक्शन, ये उसका मेन। ठीक है, आगे है मस्ट ऑल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड, ये उसका सेकंड है। फाइनेंस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम, फाइनेंस जो फंक्शन है मस्ट हैव अ शिफ्ट फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल स्टीवर्डशिप रोल टू दैट टू डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी एंड एडवाइजरी सर्विस। ये फल जो एडवाइजरी सर्विस है, ये बिजनेस पार्टनर के कॉन्सेप्ट को लाए कि आप उनके साथ एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं, ऑनरशिप ले रहे हैं चीजों की, राइट। वरना पहले रोल में तो आपने लिखना है, कंट्रोल करना है, मना करना है, ऑडिट करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है, पैरे लगाने, पहले रोल में। दूसरा रोल ये है कि उन्हें एडवाइजरी सर्विस देनी है कि कोई सिचुएशन है तो उसको ऐसे हैंडल करना चाहिए, ये नहीं कि कीड़े बाद में निकालने, नॉट अ पोस्टमार्टम, बी ऑन बोर्ड विद देम व्हेन डिसीजन इज बीइंग टेकन, उसमें अपनी एक्सपर्टी प्रोवाइड करना है। स्टूवर्डशिप होती है यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, दैट्स स्टूवर्डशिप। ये डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी जिसको कह रहे हैं, ये स्टूवर्डशिप। Okay, traditionally the finance function would spend most of the time and the resources on a transactional processing and producing the annual account. ये ज्यादा टाइम इधर गुजरता है, लेकिन in order to add value to the organization, the balance between the activity should be shifted from predominantly transaction processing to more advisory role, whilst reducing the overall cost to the organization. अगर यही बाहर से लेते हैं सर्विसेज जिसकी एडवाइजरी इन हाउस बैठी हुई है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट जो है उसकी रिडक्शन को कंट्रीब्यूट करती है। तो दैट्स व्हाट साइड, तो वो अपने ट्रेडिशनल रोल से जो हट के काम करने वाले फाइनेंस डिवीजन है, वो बिजनेस एडवाइजरी के, बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाते हैं। There is no definite structure of an efficient finance team. The need and culture of the organization must be considered when designing the structure of a finance team. अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, ऑप्शन दो है, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में मेनली जो है वो फाइनेंस टीम जो है फोकस करती है मेनली ऑन प्रिपेयरिंग बजट, प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, right, through reporting and maintaining the financial record of the organization as a whole. ये centralized ज़्यादा ये कर रहे हैं। Member of centralized team might be invited onto particular project team, but may not be involved in the decision making of an organization. ठीक है, मतलब वो छोटे लेवल, सब डिविजनल लेवल या लेवल पे उनको कभी बुला लिया जाता है, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते सेंट्रलाइज, वो ऊपर मेन डिसीजन कर रहे होते हैं। Decentralization of finance usually see finance profession closely involved in the day-to-day business of the service they support. The finance professional offers support for service budgeting, producing financial report for their services, and may be involved in the project such as the business transformation. लोकल लेवल पे ये डिसेंट्रलाइज में उनके फंक्शन जो है वो डीप डाउन चले जाते हैं, जबकि सेंट्रलाइज में वो मैक्रो ही रहते हैं। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हो रही है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस टीम कैन बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सब पार्ट, राइट, but they usually have a good grasp of the overall financial position of the organization and how the individual parts are contributing to the whole. उनको इतना पता है कि किसी डिपार्टमेंट में कितनी ऊपर जो है सपोर्ट या स्ट्रेंथ या कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। Decentralized finance profession may develop a better understanding of their team operation and may therefore become more expert in their field, but they may become detached from the overall objective of the organization. उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। The overall financial position, overall objective, overall financial position, how the team contribute to those objectives. तो ये उसका नेगेटिव, इस पैरा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों की बात हुई है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज बोथ केसेस। अच्छा, ये अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में शेयर्ड स्ट्रक्चर की, जहाँ 3-4 लोकल अथॉरिटी जो है
वो मिलके अपने कुछ फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन को चलाना चाहिए। शेयर स्ट्रक्चर आल्सो बिकमिंग मोर कॉमन फॉर फाइनेंस फंक्शन। इन a shared structure, there is a single team of finance professional staff that provides service to one or more organizations. ये शेयर्ड आ जाता है पूरा ग्रुप। जैसे एक ग्रुप है, मैं प्राइवेट सेक्टर की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक ग्रुप है जिसमें 5-6 कंपनियां हैं, एक ही फैमिली। तो हो सकता है वो अपनी फाइनेंस टीम जो है डिसीजन मेकिंग के लिए वो एक ही रखते हैं। हाँ, ऑपरेशनल जो ट्रेडिशनल रोल के लिए बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और वो उसके लिए हार्ड की अपनी अपनी, लेकिन जो हार्ड कोर और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसके लिए उन्होंने एक ही टीम की है, जिसको ग्रुप फाइनेंस टीम कहते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल कुड इंक्लूड रिचमंड कौंसल, वेंसवर्थ कौंसल इन लंदन, ये दोनों लंदन में है। आर साउथ रिबल आर द चौले कौंसल, ये अलग-अलग टर्म्स है, तो ये करीब करीब है। तो दे दो इसमें उन्होंने आपको बताया शेयर्ड स्ट्रक्चर, एक विद इन लंदन 2 कौंसल, एक आउटसाइड लंदन 2 टाउन्स की कौंसल। This has the benefit of economies of scale, of course, and reduction of management oversight, and the standardization of the process and sharing of technical expertise across the board. तो ये इसके फायदे अगर वो शेयर्ड है। So meeting the need of organization, finance function is expected to meet the business need of all stakeholders while simultaneously executing its conventional core mission जो हम बता गए हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना, अकाउंटिंग करना, रिपोर्टिंग करना, बजटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, ये हम बता चुके हैं ट्रेडिशनल रोल। The trend toward the finance organization do a role as a controller and service provider. देखिए ना, पहला रोल कंट्रोलर का है उसका, अब सर्विस प्रोवाइडर का रोल है एडवाइजरी वाला रोल है। Is likely to continue to put the pressure on the team to develop more efficient and effective way of processing and recording transaction, ताकि उनके पास टाइम निकले, perform the reconciliation and producing the forecast cheaper, quicker and more automation through technology। ये कर लें ताकि उनके पास टाइम आ जाए, ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन और सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें विद ओनरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ। ओके, बिजनेस पार्टनरी की तरफ आ गए, जिसको हम कह रहे थे कि बिजनेस पार्टनरी की बात हो रही है, शेयर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, एडवाइजरी की बात हो रही है। फाइनेंस पर्सन मस्ट स्पेंड टाइम ऑन एंड रिसोर्सेज डेवलपिंग देयर बिजनेस पार्टनरशिप अप्रोच। वो तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक टीम बना लें तो उनके फाइनेंस तीनों तो शेयर्ड नहीं, वो तो शेयर्ड कुछ ना हुआ। मैंने कहा कि एक टीम ने 4-5 बंदे रख लेंगे, 3-4 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, जो उनकी नॉर्मल डेली वॉचर काउंटिंग रिकॉर्डिंग करते रहे, कंप्यूटर में डालते रहे। एक उन्होंने बना लिया 5-6 बंदे पे हाईली क्वालिफाइड, जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइजरी दें, उनके स्ट्रेटेजिक व्यू को देखें, उनके जो नित्य नए प्रॉब्लम आते हैं उनके वो एडवाइजरी करेंगे। जो 4-4-5 में रहते थे चले बैठे हुए, तो ये तो नहीं दे। हाँ, ये उन स्ट्रक्चर के एक मिनिस्टर अगर है, राइट, एक ही उसका जो है वो बना लेते हैं गवर्निंग। देखिए इन्होंने तो क्या किया है, नहीं ये सब है, ये सब अगर किसी बार वाली फर्म से सर्विस ले लेते, नहीं मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूसी से सर्विस ले लेते सारे, तो किस पर रिपोर्ट होगी। तो इधर भी इन्होंने जो बंदे रखे हैं वो पीडब्ल्यूसी की बजाय अपनी टीम आ गई है जो इन लोगों को सर्विस दे रही है। बस क्योंकि अपना बोर्ड इनको अकाउंट पास करेगा, भाई हमें तुमने उल्टी सी एडवाइस दे दी, ठीक है। ओके, इन सपोर्टिंग सर्विस विद फाइनेंशियल एडवाइस, ये है बात। फाइनेंशियल एडवाइस जब आती है ट्रेडिशनल सर्विस के अलावा, तो इसको पार्टनरिंग, बिजनेस पार्टनरिंग का, such as in-depth value-added analysis of financial results and business-driven reporting, insight and expertise in financial, regulatory, tax and capital implication of new activity। ये आम बंदों का काम नहीं है, ये एक एक्सपर्ट लोगों का काम। Transaction and other business development initiative, advisory capability in
in the impact of new financial regulation and changing funding requirement, input into strategy of the business. इसके ऊपर जो वो उन्होंने टीम बनाई है, ये जरूरी नहीं कि वो शेयर्ड हो, इंडिपेंडेंट भी उनकी अपनी विद इन भी हो सकती है, राइट? तो लेकिन बिजनेस एडवाइजरी डजंट मीन दी शेयर स्ट्रक्चर। शेयर स्ट्रक्चर और चीज, कि शेयर स्ट्रक्चर भी आपके हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हम शेयर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल रोल से हट के फाइनेंशियल एडवाइजरी रोल में जाएं, पार्टनरिंग, you work with the whole organization as a being one of the partner in everything. तो ये मेन जो पार्टनरिंग अप्रोच में जो एडिशनल चीजें आती हैं, जो बुलेट 5 लगाए गए। There is no standard organizational structure for a business partnering approach. Depending on the organization, there will be a centralized finance function. It may be dispersed or delivered by a shared service, right? तो ये शेयर्ड सर्विस में भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिपेंड करता है सूट क्या कर रहा है। द मेन फीचर आर द एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईच बिजनेस पार्टनर टू इट्स डिस्टिंग्विश्ड टीम एंड डिपार्टमेंट मे बी डिलीवर्ड इन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ क्लाइंट का वर्ड है कि जो हिस्सा ले रहे हैं, जो जिनको सर्विसेज चाहिए, उनको क्लाइंट का, ओके। तो लिहाजा बात मैं जो ओपन अप कर रहा हूँ, एक ट्रेडिशनल रोल है, एक बिजनेस पार्टनर। फर्क दोनों में क्या है? बिजनेस पार्टी में कॉम्प्लेक्स किस्म के वैल्यू एडिड के डिसीजन के अंदर भी वो फाइनेंस टीम जब सपोर्ट करना शुरू कर दे तो उसको हम बिजनेस पार्टनर, ठीक है। ओके, ये है बिजनेस पार्टनरिंग अप्रोच, मैप्ड है। रिगार्डलेस के टीम का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस पार्टनर्स हैव डिफरेंट रोल। जैसे सेंटर में देखें, डायमंड जो है ट्रस्ट, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने, तो ये कंसल्टेंसी की पहली बात, एडवाइजरी जो बात है, कंसल्टेंसी एडवाइजरी, असिस्टिंग, enabling and enabling others within the organization, maybe within a shared structure, right? उनको assist और enable करना, इसका उन्होंने नाम दिया है I will help you think this through, okay? फिर को लीडरशिप की बात की है, ये जो within the finance structure, maybe in the shared structure, joint initiative, ventures and collaboration with others. We will do this together. Guys, is shared governance, helping others adhere to the policies and good practices. You will need to do this. Or service provision, yeah, providing the information or doing a specific task, I will do this for you. So this is where they say these kind of roles आ जाते हैं business partners. ठीक है, प्रोवाइडिंग द कंसल्टिंग, को लीडरशिप भी हो सकती है, जस्ट गवर्नेंस भी हो सकता है, और सर्विस प्रोविजन में भी हो सकती है, इन अ होल सिनेरियो भी हो सकती है, और राइट। तो डिफरेंट जो बिजनेस पार्टनरिंग का फाइनेंस फंक्शन का मैंने दिया है, बिजनेस पार्टनर में यू गिव देम द सॉल्यूशन इन मोर टेक्निकल एरियाज पर, जिसकी जो मैं 5 बुलेट यहाँ दिखाए, ओके। Now, business partnering में we are looking at in the public sector, business partnering for a finance profession about how finance role contribute to rather than pursuing the narrow departmental agenda, नहीं बल्कि broader. Labeling finance and business partner can help to break down stereotype what accountant normally do and the finance department normally do. वो जो 3-4 function वो करते हैं, it's dangerous however to simply rely on the role name change. कई दफा काम वही हो रहा होता है, जैसे कहा लीडरशिप की जगह मैनेजमेंट की जगह लीडर नाम दे दिया जाए, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह किसी आम मैनेजमेंट कंटेंट फंक्शन को बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप क्या दी जाए, उससे कुछ नहीं होगा। एंड एक्सपेक्ट चेंज इन सर्विस डिलीवरी और रिसेप्शन बाय द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी फुली शेयर, राइट।
So basically, it's not the traditional role. It's more than that. Business partnering attempt to gain best both the centralized, decentralized structure जो offer करते हैं, by supporting the sound financial decision and good financial management. Usually maintaining a central finance team, but within that, developing the finance professional to have the skill to understand the different part of the organization, its complexity, its needs, its desire. तो 15 बंदे आपके हैं, 12 बंदे तो रेगुलर वर्क करने वाले हैं, लेकिन 3 ऐसे चमत्कार देने वाले हैं, यानी जो मिरेकल प्रोड्यूस करने वाले 3-4 बंदे वहां मौजूद हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है और कम्प्लेक्सिटी, नीड और तो ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर को अंडरस्टैंड करना उन्होंने। और दीज स्किल्स, स्किल्ड फाइनेंस प्रोफेशनल, जो 3 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी 12 की नहीं कर रहा। These skilled finance professionals can then act as a dedicated advisor on a particular department issue, right? While still maintaining a good understanding of the organization as a whole. Okay? Whilst यानी जरूरी है कि उनकी good understanding of the organization. The idea of business partners is not without its problem. Some argue that the term business, the partnering suggests that the finance is outside of the business proper rather than integral part. ऐसा नहीं है, integral part. And also in a non-commercial organization, जब word business use होता है तो लगता है profit making की बात होगी. Private sector कहीं तो ऐसा लगता है जब profit making की बात. और partner कहें तो कुछ और indicate होता है कि ये they are not an part, integral part of that, rather they are the equal, right? Equating that. Therefore, counter to the culture and nature of the organization. तो ये issues हैं, इसके word partner भी issue बनता है बात of understanding में, और business word जो है वो भी ऐसा लगता है commercialization की बात होगी, commercialization की बात होगी. Okay, there are plenty of evidence that the term business partner become more widespread in public sector, with many organizations moving away from the job titles such as chief accountant and advertising the position of business partner to fulfill the traditional responsibility of the role, as well as adding value as a support service to the different departments. यानी वो मार्केटिंग को भी सपोर्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्शन को भी दे रहे हैं, वो फाइनेंस को भी दे रहे हैं, वो आईटी को भी दे रहे हैं. So they are called the business partner. There is a range of definition of the term business partnering. They usually include one or more of the following, like involvement in strategy formulation, implementation, and communication. Maybe involvement in commercial decision making and negotiation. Maybe leading on the business analysis. Maybe being a sound board, sounding the board, यानी board को inform करना, उनको alert करना, उनको feedback देना, trusted advisor, critical friend and facilitator of productive business discussion. तो ये मुख्तलिफ उनके usually one or more of the role हो सकते हैं, right? है आपकी finance team का part, लेकिन they are high level professionals. क्या क्या करेगा, उसी लेवल के 2-3 लोग और उसके साथ भी होने चाहिए. नहीं यार, वो किसने करना है, ये किसने करना है, टिकें किसने लगानी है, वोचे किसने निकालना है, डब्बे किसने खोलने हैं, ये नहीं बात हो. ये हो रही है कि आपने नॉर्मल टीम के अलावा ऐसे बंदों को रख लिया जाए जो ऑलराउंडर हो, सारे एरियाज को हिट करते हो, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, अकाउंटिंग में रहते हुए, है. क्या आप टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बंदे को साथ अटैच करवा दें, मार्केटिंग वाले को अटैच करा दें, इनका एक कोर टीम साथ बना तो बिजनेस पार्टनर का रोल करना चाहिए. वी आर नॉट सेइंग कि 3-4-5 की अपन, वी आर नॉट सेइंग दैट. यू नीड द प्यादा भी चाहिए, सारे जनरल रख लें, बड़ी अच्छी जंग लड़ रहे नहीं है. बस फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, आज ये मैसेज पढ़ें, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर यूजुअली डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, although they can be through the partnership arrangement or through the outsource, where the specialist services are delivered under contractual arrangement. दोनों, आपके अपना स्टाफ भी हो सकता है, आउटसोर्स लोग भी हो सकते हैं.
और 2-3 ऑर्गेनाइजेशनों को इकट्ठी सर्विस देने वाले यानी पार्टनरिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है। लेकिन सर्विसेज उनकी स्पेशलिस्ट है, जो हर सीएफओ या हर फाइनेंस बंदे का काम नहीं है, राइट। तो बिजनेस पार्टनरिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। बिजनेस पार्टनरिंग पब्लिक सेक्टर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत जरूरी, वरना वो बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकता। Successful business partnering can only be achieved if those people who are going to play the role of business partner understand the organization. ठीक है, और understanding the finance can both determine the business need and help to meet them. Organizational understanding is not always easy to achieve. It takes time, and the organization can be understood in many ways, and the organization also change. His understanding को change करना पड़ेगा, develop करना पड़ेगा। देखा ना, किसी को पूछें कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन बात बताओ क्या करने में, हालांकि 2 साल हो गए, उधर ये एक बंदे को बुलाएं जो 12-14 साल से है, उसको सारा ही पता है। तो ये कह रहे हैं टेक टाइम, ठीक है, और उसको मैनी वेज है उसको अंडरस्टैंड करने के। और दिस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गेन थ्रू ऑनगोइंग कन्वर्सेशन, ऑब्जर्वेशन, research and action. For example, manager may discuss needing help with investment decision, okay, but it is only when the advice is provided and its impact is assessed that the finance understand is fully tested. हाँ, कब पता चलेगा कि हाँ फाइनेंस ने समझ लिया था ऑर्गेनाइजेशन को, जबकि उसके डिसीजन के रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा इम्प्रूवमेंट आई हैं या पहले से भी ज्यादा डिटीरियोरेशन आई है, राइट। The strategy of finance business partnership will depend on organization demand for the business partnering as well as the finance team's capability. दोनों चीजें, किस हद तक वो चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट मिले, और फिर जो टीम है फाइनेंस टीम जो बिजनेस पार्टनरिंग का रोल प्ले करने जा रही है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या, राइट। तो फाइनेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंडिकेट वेदर देयर इज ऑर्गेनाइजेशन डिमांड फॉर द बिजनेस पार्टनरिंग है भी कि नहीं। Does the nature of the organization require business partnering or not? What would be the benefit of business partnering to the organization? Whether demand can be met depend on the क्या जो उनकी demands हैं वो meet की जा सकती हैं by developing a finance function a broader way, इसमें capabilities हो जो deliver कर सके what is needed. This is not one right way to position the finance department, but it can often do more to support the organization. राइट, इसमें सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस पार्टनरिंग के अंदर, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग वेल विदाउट फाइनेंस एक्टिंग एज अ बिजनेस पार्टनर, देयर मे बी नो नीड टू परस्यू बिजनेस पार्टनरिंग रोल। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रही सही काम तो बिजनेस पार्टनरिंग में ना लेके जाएं, वो सर्विस बाहर से ले लें किसी वक्त जब जरूरत पड़े। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर सिचुएशन ऑफ क्रिएटिव टेंशन विद एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग, and so manager should save a time from more conservative role से control oriented finance staff चाहिए। Doing more to support the need of the organization may require developing capability and generating the demand for additional finance department services, जो expensive भी हो सकता है कि advisable भी ना हो। तो लिहाजा अगर need है, अगर justification है और capabilities है इसके, तो फिर बिजनेस पार्टनर अप्रोच करे, वरना ट्रेडिशनल सीएफओ डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट काफी है। लेकिन पीपल आर गोइंग इनटू दैट कि भाई ये जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, ये बेटर डिसीजन और क्विक डिसीजन दे देंगे, सपोर्ट दे देंगे एज कंपेयर टू आउटसाइड। नहीं, देखिए कल एक छोटी सी बात की कि आगे बिजनेस पार्टनरिंग में आना है, अब वो उसको ओपन अप किया जा रहा है बिजनेस पार्टनर, राइट। अच्छा, there are 3 sets of successful business partner, ठीक है। स्किल जो है बिजनेस सक्सेसफुल पार्टनर की वो 3 बताई गई हैं। एक तो है टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल, बिहेवियरल एंड स्मार्ट स्किल, जिसको सॉफ्ट स्किल भी आप कहते हैं। तीसरा स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल एक्यूमेंट, जब बिजनेस सेंस, राइट। पहला है टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल, दूसरा है सॉफ्ट स्किल।
तीसरा है उसकी स्ट्रेटजिक और कमर्शियल सेंस, 3 चीजें बात की जा रही है। तो ये टेक्निकल स्किल जो गेन की जाती है इसकी थ्रू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऑप्शनल अप्रेजल। ऑप्शन अप्रेजल है कि आपका 3 प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा करना जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है। कॉस्टिंग, फोरकास्टिंग, ये सारी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। बिहेवियर जिसमें सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन है, एंगेजमेंट है जिसमें लिसनिंग होती है, आस्किंग राइट क्वेश्चन होते हैं, एडजस्टिंग द लर्निंग नीड ऑफ द बिजनेस यूनिट्स, ये सारा सॉफ्ट स्किल में आता है। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड द एबिलिटी टू चैलेंज, राइट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ये होनी चाहिए जो रोल बिजनेस पार्टनर का रोल लेना चाहता है स्टाफ। स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल साइंस की बात जो है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द सर्विस पोर्टेड and the business benefit and commercial reality from the perspective of the organization, funders and customers and stakeholder के point of view से जो उसके benefit हैं, commercial benefit हैं, commercial realities हैं, इन सब की awareness होनी चाहिए। तो ये 3 very essential skills हैं for any member of the team which want to play the role of business partner। और मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हाट इज बिजनेस पार्टनरिंग? अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल, दे शुड बी एबल टू एडवाइज, ऑफर एडवाइस इन टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स, न्यू मैटर। बेनिफिट ऑफ बिजनेस पार्टनरिंग क्या है? बिजनेस पार्टनरिंग फोकस ऑन सपोर्टिंग द परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजिक business partner innovation, focus on focus on enabling the transformation of the organization. This is the basic difference. ठीक है? बिजनेस पार्टनरिंग फोकस ऑन सपोर्टिंग द परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरिंग जो है वो फोकस करती है एनेबलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, इसमें सिक्योरिंग द स्टीवर्डशिप, सपोर्टिंग द परफॉर्मेंस, एनेबलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। पहले वाले 2 तो नॉर्मल में आ जाएंगे, तीसरे वाला जो है वो स्ट्रेटेजिक में चला जाए। Securing the stewardship mean emphasis on control, poverty, meeting regulatory requirement and accountability. ये stewardship है। आपने पहले में क्वेश्चन किया था। That comes under stewardship. Okay. The use of resources with this angle, or the sporting performance जो है responsive to customers and stakeholder, efficient, effective, and with the commitment to improve the performance, right? और थर्ड इज enabling the transformation, strategic and customer led। customer led में बार बार कह रहा हूँ, stakeholder led, उनकी रिक्वायरमेंट, future oriented, proactive in managing change and risk, outcome focused and receptive to new ideas. They had transformation. If there are no business benefit from business partnering, then there is no good reason to go for business partnering। अपने conventional finance function की तरफ ही रहना। The benefit of good business partnering for finance staff as individual, for the finance department as partner, and for the wider stakeholders should be established. Benefit established होते हैं तो then justification आती है, otherwise no justification for business partner। Right? इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है? सिनेरियो है, they are thinking of, they heard about the business partnering and they are thinking about going into business partnering rather than traditional partnering। ये सारी discussion related। अच्छा, priority of business partnering, priority क्या है? Within this context of managing demand and increased resource pressure, the priority for the finance business partner would be, okay, within the context of managing the demand and increased resources pressure। resources pressure क्या है? Limitation है, events ऐसे हो गए, पास्ट में क्राइसिस ऐसे आए हुए हैं, ऑस्टेरिटी है, उस वजह से। Explain the financial circumstances objectively, comprehensively and sensitively to the decision maker, service user, taxpayer and staff in the context of key resistance from all parties
to reducing the existing service. कोई नहीं चाहता कि existing service में कट लगे या quality उसकी suffer करे. The significance of this role become very more acute as the budgetary reduction getting intensified. तो ये role बड़ा अहम हो गया उस केस में financial constant के. Number 2, to ensure the performance measure. Track the key business and cost driver for the organization, how it's performing, and use predictively and to develop adequate system to deliver this information in a format that enable the organization to make informed decisions. Right information, right time पे, right detail में provide कर, right quality के साथ. To support the organization fully in delivering its outcome by becoming the integral part of strategy setting and business plan. To ensure the financial control is operating well in any transformational change. हमने पहले transformational change की बात किया है, open to new ideas वगैरह, without becoming a blockage. To manage the public financial interest issues arising from the professionalization of the service. Personalization of the service. जब सर्विस को आप पर्सनलाइज करते हैं, लोगों के अपने अपने आइडियाज होते हैं, अपने अपना, तो आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंटरेस्ट के इश्यूज को सामने रखते हुए उसको डिलीवर करना. So this is basically talking about how you can have effective business partnership. फाइनेंस बिजनेस पार्टनर सक्सेस जो है, फेलियर फैक्टर उसके क्या है? ये पार्टनरिंग जो है फेल हो सकती है. आप तजर्बा किया, ऐसे लोग रखे, ऐसे लोगों के साथ लाइन अप हुए जिससे आप समझ रहे थे एडवाइजरी आएगी, सिर्फ ट्रेडिशनल रोल नहीं होगा. कैन फेल टू डिलीवर एक्सपेक्टेड बेनिफिट इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड अप्रोच. इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर फेलियर व्हेन इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंस बिजनेस पार्टनर. तो कौन सी रीजन हो सकती है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, तो उनको समझना. एक्सटर्नल फैक्टर हैं एक्सटर्नल टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट, या ऑर्गेनाइजेशन, या टेक्सटाइल सेक्टर है, या कौन सा सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, राइट. ऐसा यानी हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लेट मी टॉक अबाउट टेक्सटाइल, राइट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उससे बाहर से फैक्टर. इंटरनल फैक्टर रिलेट टू फाइनेंस फंक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंस प्रोफेशनल रिलेटेड इश्यूज है, कैपेबिलिटी नहीं है वगैरह वगैरह, वो चीजें इसमें आती. तो ये फेलियर फैक्टर दो आइडेंटिफाई किए, एक तो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या उसकी रीजन जो है उनका एनालिसिस की जरूरत है कि वो रीजन जो है वो क्या है. ये अब असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंस फंक्शन. अगर आपने फाइनेंस फंक्शन की परफॉर्मेंस असेस करनी है तो इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए. अब उसमें क्या है, 4 एरियाज को कहा है? जी जी. अच्छा, वो भी विद इन फाइनेंस फंक्शन ही आ रही थी, बिजनेस पार्टनर विद इन द फाइनेंस फंक्शन ही आ रही थी. या अच्छा, अब पीपल, सिस्टम, प्रोसेसेस, डिलीवरी, ठीक है, PSPD. और इसमें इफेक्टिव क्या है? राइट पीपल, राइट जॉब, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग लोगों की. सिस्टम में क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग. और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या मतलब आपका? क्लाउड कंप्यूटिंग, बस क्लाउड कंप्यूटिंग. मतलब नहीं, जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए ना, आप अपना ना ले, वहाँ अवेलेबल है, प्रेस्क्राइब्ड है, आप उसको यूज करें, राइट. तो इसलिए वो कहते हैं कि उन वाली फैसिलिटी में जाएं, अपना इतने बड़ा सर्वर और ये चीजें लगाने की जरूरत नहीं, खत्म हो जाती है. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम, आइडियल ना हो, यूटिलाइजेशन हो, वन वर्जन ऑफ सिस्टम हो, डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ना हो उसमें. प्रोसेस जो है एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी उनमें, प्रोसेस में रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, डिलीवरी में एनालिसिस अलाइन टू KPI. जो KPIs आपने रखे हैं, एनालिसिस उसकी लाइन में किया जाए ताकि उन KPI को असेस कर सकें आप.
सेल्फ सर्विस पोर्टल होने चाहिए जिसमें आदमी खुद लॉगिन हो, खुद उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले, रादर दैन कि वो एक बंदा लेके प्रिंट करके निकाल के लेके जा रहा है, दूसरा उससे पूछ रहा है। बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करें, कोई सारे जो आपके विंग्स हैं उनको जो बिजनेस सपोर्ट चाहिए आप जो दे सकते हैं वो देनी चाहिए। और एफिशिएंट में नो डुप्लीकेशन, लो कॉस्ट और शेयर्ड सर्विसेज को जहाँ जरूरत है लेके आए ताकि इकॉनमी आ जाए। आउटसोर्सिंग करें, फोकस ऑन ट्रांजैक्शन रखें। और आगे नेक्स्ट आ जाता है जो सिस्टम है सिंगल सिस्टम रिपोर्टिंग, रिडक्शन ऑफ मैनुअल स्प्रेडशीट जो है मैनुअल वर्किंग को कम करें और ऑटोमेशन में ज़्यादा जाएं। कॉमन पार्ट चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ करें ताकि सबके लिए इजी हो टू अंडरस्टैंड दैट और इम्प्लीमेंट दैट। और इन्हेंस ऑटोमेशन और रैपिड सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन ज़्यादा लाएं। रैपिड रिस्पॉन्स टू चेंजेस, जो चेंजेस आए उनको रैपिड रिस्पॉन्स दें। स्टैंडर्डाइज वेल स्टूड प्रोसेसेस और फास्टर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, लेस कॉम्प्लेक्सिटी मोर क्लैरिटी डिलीवरी में होनी चाहिए और लो कॉस्ट सोल्यूशन देने चाहिए। दिस इज व्हाट आर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हम नॉर्मली लाते हैं, तो उसने कहा कि फाइनेंस फंक्शन आपका जो है इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी के और इफेक्टिवनेस के इंडिकेटर किस समझ मान, तो वो 4:15 ही ब्रेक करते हैं। अगर आपने उसके लिए ब्रेक लेनी है तो फिर उस वक्त करते हैं। अच्छा, असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन, ये कैसा ऑपरेट कर रहा है फाइनेंस फंक्शन, इसको बेंचमार्किंग भी कहते हैं। ठीक है, बेंचमार्किंग कैन बी यूजफुल टू एस्टैब्लिश whether the finance team offer the goods value for money. इससे कैसे होती है, by comparing how the other organizations are having the same services perform. तो ये benchmarking. CIPFA operate benchmarking club where subscriber can submit the financial data in an agreed format and criteria to make meaningful comparison more likely. ठीक है, तो ये वो करते हैं कि वो ताकि उसका मीनिंगफुल कंपैरिजन हो जाए दूसरों, सारे डाल रहे हैं उस क्लब में, काफी लोग यूज कर रहे हैं अगर, तो वो बेंचमार्किंग हो जाएगी। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हेन टेकिंग अंडरटेकिंग बेंचमार्किंग टू इंश्योर दैट लाइक डाटा इज बीइंग कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिफरेंसेस हैं पॉलिसीज के अंदर, लाइक पॉलिसी ऑन सिकनेस, फ्लेक्सी लीव और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के अंदर फर्क है, कैन इम्पैक्ट द एबिलिटी टू कंपेयर, क्योंकि लाइक विद लाइक कंपेयर हो सकता है। Raw data, even manipulated data to form performance information can be misleading if the quality of data is poor. If the quality of service delivered is not considered, then the cheaper may not always be uh, having a better value, right? तो लो कॉस्ट होना जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। तो बेंचमार्क जो है इसको होना चाहिए कि जो आपके फंक्शन हैं, अगर दूसरे लोग वो फंक्शन कर रहे हैं तो जो डाटा आपकी परफॉर्मेंस का है उसको आप बेंचमार्क कर सकते हैं। जैसे सिपा ने एक क्लब बनाई है जिसमें जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मेंबर है उस क्लब का, मे बी सम फीस फॉर दैट, चार्जेस फॉर दैट, क्योंकि वो जहाँ उनकी फ्री थी तो बताया था उन्होंने फ्री है। रेजिलियंस इंडेक्स, सिपा रेजिलियंस इंडेक्स वगैरह जो है बताया था वो फ्री है, इसमें नहीं बताया तो वो। लेकिन बात हो रही जब आप बेंचमार्किंग करें, डाटा जो है वो क्वालिटी होना चाहिए, रॉ नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए, लाइक विद लाइक, ये बात है। ये सर्टन मैसेज इसके आउट। तो दूसरा एक मैसेज है, जरूरी नहीं तो जो चीपर है वो बेस्ट, ये जरूरी नहीं, लो कॉस्ट हो बेस्ट। एथिकल कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल। अच्छा, ये जो पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल है, फाइनेंस प्रोफेशनल है, इनपे कुछ एथिकल बाउंडिंग भी है। पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी, म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्रेडिट यूनियन। अच्छा, ये क्रेडिट यूनियन जो है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो जहाँ डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं, अपने मेंबर होते हैं इसके, राइट। जो भी बैंक में उसको सर्विस लेना चाहता है मेंबर बन जाता है, तो लिहाजा वो कॉस्ट, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती।
लिहाजा लो कॉस्ट सर्विसेज फाइनेंस की मिल रही होती हैं, इसको क्रेडिट यूनियन कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मेंबर्स के लिए काम, जैसे कोऑपरेटिव होती है यार, कोऑपरेटिव। हमारे यहाँ तो लोगों ने फंड बनाए कोऑपरेटिव से, लेकिन कोऑपरेटिव का मकसद ये होता है कि सर्विसेज जो है वो आप रीजनेबल रेट्स पे अपने मेंबर को दें, उसको प्रॉफिट ना करें। The accountancy profession are heavily controlled by statutes and regulation, और ये अदारे भी, चैरिटीज, म्यूचुअल और अकाउंटेंट प्रोफेशन सब, which include standard of conduct. Extensive safeguards are also built into internal procedure. इंटरनल प्रोसीजर के अंदर भी जो सेफगार्ड दिए जाते हैं तो कोई मिस यूज ना करे और विद इन द लाइंस वर्क करे। फाइनेंशियल रेगुलेशन, शेड्यूल ऑफ रिजर्व एंड डिवॉल्व अथॉरिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, regime of corporate governance and internal control, declaration of personal financial interest, rules for reporting gift and hospitality जो आपको मिलते हैं, जिस तोशा खाना की बात हो रही है, and the contact with the supplier, and so all exist to create the environment free from abuse, fraud and corruption. इन सब का मकसद ये है to create an environment free from abuse, fraud and corruption. तो अभी एथिक्स की बात नहीं कर रहे, एथिक्स बात आगे कर। Sound systems like these are the first line of defense against the unethical conduct. But following the rule is not enough on its own. Professional ethical conduct requires us to think about the reason behind these rules. क्यों है जी? उनकी स्पिरिट क्या है, ताकि हम ब्रॉडर वे से उसको फॉलो करने करें, राइट? ये नहीं टिक बॉक्स नहीं करना, इसके पीछे स्पिरिट क्या है उन रूल्स और रेगुलेशन। तो नॉलन रिपोर्ट जो है listed the 7 principles of these life, ठीक है ना? अब उसने नालन रिपोर्ट का जिक्र किया, तो मेरा काम है, मुझे पता हो व्हाट इज द नालन। ये आपको पता है चर्चिज के अंदर जो थ्रेट टू चाइल्ड एंड मिस यूज ऑफ थिंग्स जो थी वो सामने आई, तो बिशप या आर्च बिशप ऑफ जो वेस्ट मिनिस्टर है, उन्होंने फिर उस पर एक किसी बड़े प्रोमिनेंट पर्सन को उसका कमीशन बना के उसे कहा जी कि आप इसको देखें। तो उस कमीशन ने क्या किया, उसने जो दिए प्रिंसिपल, उसने कहा ये सारी पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए, वो पब्लिक लाइफ में हैं जो नन्स और प्रीस्ट और सम चर्च जो हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनके प्रिंसिपल। नॉलन लिस्टेड 7 प्रिंसिपल, दोज इन पब्लिक लाइफ यू वुड हैव दिस, लोगों ने, वहां के लोगों ने तो अखबारों में पढ़ा होगा। एज ए रिमाइंडर दे आर शोन बिलो: selfishness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and leadership. अच्छा, मैं जब ऐसी चीज देखता था ना, तो मैं इसका नमोनिक बना लेता। वो आप बना लें, कोई नमोनिक बनाए जो आप समझ। जैसे मैंने 4 प्रिंसिपल थे, उसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? इंटरनल कंट्रोल की टाइप्स 8 से, तो मैंने उसका एक स्लोगन बना लिया था, पासम सो, पासम सो। उस समय सारे डिफाइन कर देते नहीं, फॉर प्रोफेशनल, A for authorization, S for segregation of duty, M for management, S for supervision scope में, O for ownership, right? A is authorization, P for persona। आज भी याद, राइट? तो इसके लफ्जों को मैं ऐसे आप करूंगा कि एक रिमेम्बरेबल वर्ड बन जाए, ये मैं आपको नहीं, वो तो कोई भी बन सकता है ना, एस को आगे करो पीछे, सीक्वेंस उनका क्या हो, डजंट मैटर। नहीं, 2 ओ इसमें आ रहे हैं, ऐसा वर्ड बनाना है,
एक आई आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, तो ऐसा वर्ड आप बना सकते हैं तो आप रिमेम्बर कर सकते ताकि आपको प्रोड्यूस करने पर जो रटा नहीं चले, आप उससे आराम से ड्राइव कर लें। ठीक है, ओके। तो ये है सारे सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, कोई मसला इसकी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन के अंदर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये 7 प्रिंसिपल। जैसे अकाउंटेबिलिटी में उसने कहा होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन, राइट। तो ये दे मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू स्क्रूटनी व्हेन, ये अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल, ठीक है, ओपननेस के दे शुड बी ओपन अपने डिसीजन और अपने एक्शन एंड शुड बी एबल टू ऑफर द रीजन कि वो क्यों है, राइट। ऑनेस्टी, डिक्लेयर एनी पर्सनल इंटरेस्ट, तोशा खाना की बात हो रही। लीडरशिप शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दोज प्रिंसिपल बाय लीडरशिप, बाय एग्जांपल, बाय एग्जांपल अपने ऊपर अप्लाई करें। तो ये चीजें हैं जो को 7 प्रिंसिपल बताए गए। एथिकल कंसेप्ट, पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल, अब प्रोफेशन की बात आ गई, अकाउंटेंट की बात आ गई। These principles apply to all holder of public office. The principle of leadership should be ensured that the holder of the higher public office should champion these principles. जितना top from the tone from the top word, right? ऊपर से जो सबसे ऊपर है उसको अपना, ठीक है। Work of accountant need to be trusted by society at large as well as the individual employers, its clients, and other stakeholders. Is expected to be free from personal bias, done competently, capable of being verified. यानी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। Capable of being verified mean evidence based. Supported with the documented, इसका मतलब है capable of being verified, supported by the document. It is principal added value of the accountancy profession that such matters are assured by membership in professional body. जो भी किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होगा, ये नीड जो बॉडीज हैं वो एनफोर्स करती हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंस, एंड दिस इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट नाउ दैट दीज स्टैंडर्ड अप्लाई इंटरनेशनल। ये तो आईफैक लेवल पे आ गए हुए हैं ना, तो इंटरनेशनल। CIPFA members should also have in mind that the future expectation of high standard of behavior is overlaid on those who work in the public service. उन पे ज्यादा emphasis, who perceive to be being in a position of public trust, right? So more standards burden is CIPFA कहता है कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल, यहाँ प्रोफेशनल rather में content क्या है। With the leadership role of finance manager come to responsibility to act as a leader, to be honest and trustworthy. We expect the finance manager to behave well when they're dealing with the public money. So many leadership scandals in society आए हैं इसी topic पे. Is it really that difficult for the leader with the public and service sector to behave ethically? क्या वो ethically behave नहीं करते, तो उस वजह से स्कैंडल आ रहे हैं। तो morals and values जो है should lie in the heart of the ethical dilemma. Okay? और our moral come into play when we are called upon to make a judgment. उसको पता चलता है मॉरल आपके क्या हैं जब जजमेंट आपके हाथ में आता है। Within the financial leadership role, decisions are seldom clear cut और लोग इसलिए उससे फायदा उठा लेते हैं, राइट। गुड हैं, बैड हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए बीच में चूना लगा दिया जाता है। They must factor in the need of the requirement of a multitude of the stakeholder. Our value comes from our experience in the life, the culture and society we live in, right? तो ये बेसिकली ये चीज है कल्चर एंड सोसाइटी, राइट, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स भी कमजोर होते हैं कि उसमें जो स्टाफ काम करता है वो सोसाइटी इसी से आता है। Again, a leader in the public service will be dealing with the employees and citizens from a wider variety of culture and background. Ethical leadership is therefore not just about following the rules, as none of them can be applied absolutely to the complex nature of decisions made on behalf of others. It is necessary to understand, acknowledge the rules, and set boundary for action
while treating people fairly and respect. That's what it is. Fair and respect. Okay. अब बेशुमार स्कैंडल्स आए हैं. Ethics of financial leadership. Leading a public service organization comes with a lot of pressure and difficult decisions to be made, and on one way of enabling leaders within the public sector to act ethical is for the organization to develop code of ethics. लिहाजा हर organization अपने code of ethics बनाए. These code of ethics are usually available to staff to manage expectation around how you should treat people and how people can be expected to be treated. हमने पहले कहा respect and fairness. Code of conduct typically include guidance on these 5 things: disclosure of information, relationship amongst politician, manager, citizen, employment matter, hospitality and relationship with subcontractors, with the general public also, and the conflict of interest. तो कोड के अंदर ये चीजें मेन करता है. इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी तो ओपननेस है. ठीक है. रिलेशनशिप अमंग द पॉलिटिशियन, मैनेजर, सिटीजन जो है वो विद इन बाउंड्री होनी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट मैटर जो है फेयर और रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए. राइट. हॉस्पिटैलिटी अनड्यू नहीं देनी चाहिए किसी वरना तो इंटरेस्ट को सर्व करेंगे. रिलेशनशिप विद सब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बड़ी ही केयरफुल होनी चाहिए भाई. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें. अपने फैमिली, अपने दोस्तों को बेनिफिट पहुंचाना. अच्छा, अब देखिए उसने कहा था सोसाइटी. देखिए यूके के अंदर तो एक पत्ता ही कट गया ना, रिश्तेदारों वाला, दोस्तों वाला पत्ता ही कट गया. वहाँ रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, रहती नहीं है. बाद में 18 साल 20 साल के आप वो इंडिपेंडेंट हो गए. पेरेंट जो हैं वो जाके क्रिसमस में मिले उनको. कोई सालियां, भांजे, भांजियों को वाले चक्कर नहीं होते. हमारे यहाँ तो चेन ऑफ जो चीजें. तो वो उसने जो कहा है कि सोसाइटी कल्चर बहुत मेजर फैक्टर. A finance manager, there will be time when the sensible option to be made from business perspective, it will be odd with the desire, even need of the customer and decision makers. Right? फाइनेंस मैनेजर इन पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डेवलप पॉलिटिकल अवेयरनेस. वो हमने पहले भी कहा था कि वो क्या होना है क्या नहीं करना उसका उसको पता हो. व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर देयर एंड यूजर क्या एक्सेप्टेबल है. At the same time, they must develop the leadership and negotiation skill to ensure that they are not placed in a position where following the desire of the decision maker may lead the organization to breach the regulation और इसके लिए भी प्रॉब्लम बने or cause the finance profession to breach his ethical or their ethical codes. For example, of this local government might be where elected member put forward a budget proposal that means the overall council budget is not balanced with the appropriate income and reserves. आपको कहा था एक्सपेंडिचर इनकम से मैच करने चाहिए या कुछ रिजर्व के इस्तेमाल, लेकिन लीविंग दी एडुक्वेट रिजर्व फॉर फ्यूचर को हो. तो therefore breaching the applicable legislation. तो लॉ में हमने पढ़ा कहा था कि ये चीज होनी चाहिए. Okay, so this is the summary of this area. और हम बात जो करेंगे अभी वो ये करेंगे जो ट्रेजरी मैनेजमेंट. ट्रेजरी मैनेजमेंट. What is the treasury management? Treasury management is basically investments and funding, borrowing, basically. ये है treasury management. Okay, so we will be looking at treasury management.
अच्छा, ये हम इन्होंने कहा है 4:15 बजे नमाज होती है, हम 4:10 पे ब्रेक लेंगे और फिर 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसलिए आई रियली वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मैं टाइम को हमारा ज़ाया ना हो, तो क्योंकि आई वांट टू कवर द वाइडर पर्सपेक्टिव, मैं इसको कवर करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये वही मसला आ गया यार, मैंने कहा था क्या करना था, उसने कहा इसको करो, उसके बाद किसी एक को प्रेस कर लो, नहीं हुआ है। एक चीज और उसने कही थी, चलो मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या हार्ड दी प्रेजेंटर भी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, ये वर्कबुक जो हमारी 3 है उसका लास्ट पार्ट है। मैंने कहा था 3 पार्ट हैं इसके, एक था इन्वायरमेंट फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजर, एक था रोल ऑफ फाइनेंस फंक्शन। आज जो भी हमने किया है रोल ऑफ फाइनेंस फंक्शन, जिसको हमने एथिकल कंसिडरेशन पे खत्म किया है, उसमें क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, रोल ऑफ फाइनेंस और बिजनेस पार्टनरिंग और एथिकल चीज़ों की बात की है हमने, और लीडरशिप में और मैनेजमेंट में रोल में क्या डिफरेंसेस हैं, और हमने अल्टीमेटली कहा कि ये नेविगेटर और ये जो है इनोवेटर, और इसके अलावा हमने कहा कि ये सीनियर रोल होता है फाइनेंस का। तो आगे हमने कहा लीडिंग बाय एग्जांपल, उसके लिए हमने एथिकल कंसिडरेशन की बात खत्म की है। तो अब ये ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर जो बातें आएंगी वो क्या है, वो ये है फना, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट एंड बोरिंग है बेसिकली। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, बोरो करना है, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ बोरिंग क्या है, वेरियस एटीट्यूड टू रिस्क एंड रिटर्न क्या है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी देखते हैं, रिस्क भी देखते हैं, तो आपका क्या एटीट्यूड टू रिस्क है, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, और यूज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस किस में आपने इन्वेस्ट करना है, और जैसे बॉन्ड्स में करना है, शेयर्स में करना है, बैंकों में रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट पावर और उनके ऊपर कांस्टेंट क्या है, और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग दिस इन्वेस्टमेंट, बोरिंग के कौन हैं, क्या हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं बोरिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, एथिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं कि इन्वेस्टमेंट एथिकल में होनी चाहिए। ओके, बोरिंग की वेरियस ऑप्शन क्या हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, पेंशन फंड जो हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, तो पेंशन फंड के पास काफी पैसा होता है, वो भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। ओके, तो लेट्स look at the definition of treasury. Treasury management is the management of organizations cash flow, its banking और इस मार्केट ट्रांजैक्शन। मार्केट दो तरह की है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट, और द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज एक्टिविटी एंड द परसूट ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट विद दोज रिस्क, दिस इज द ट्रेजरी मार्केट। अब व्हाट इज द मनी मार्केट, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट, एनीवन लाइक टू से एनीथिंग? मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है? जी, ये जो कैपिटल मार्केट है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह, एक्सचेंजेस वगैरह को कहते हैं, और मनी मार्केट ये आपके बैंकिंग सिस्टम जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स कॉल्ड मनी मार्केट। ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो, इट्स बैंकिंग, money market, capital market transaction, and effective control of the risk associated with those activities, and also pursuit of the optimum performance, which should be consistent with the level of risk you have taken. This is the definition. Okay. अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंसिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल प्रोजेक्ट। दे आर टू मेजर एस्पेक्ट।
एक बोरिंग है और एक इन्वेस्टमेंट, दो मेजर आस्पेक्ट, राइट। पब्लिक सेक्टर एज मैनी एंड वेरिड प्रोजेक्ट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं एंड देयरफॉर मस्ट बी फाइनेंस्ड ऑफ्टन थ्रू बोरिंग। तो क्योंकि फंड पहले इतने नहीं सेव हुआ कि जिनको आप इन्वेस्ट कर लें, ये कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस हम पैसे ले आएंगे। तो बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोरिंग से होते हैं। और हमने बताया भी था कि बोरिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल भी करना चाहती है, और जीडीपी टू बोरिंग जो है वो जो जब कंपेयर होते हैं तो गवर्नमेंट बोरिंग होती है, तो इसलिए उसको लिमिट में लाना चाहती है। तो project could have a benefit for the longer term. जैसे building new roads, hospital, school will deliver economic and social benefit to people for decades in future. Instead of spending on long-term aid programs such as building school, providing clean water, and ammunition, ammunition, ये जो टीके शीके लगाने का काम है, for childhood diseases should deliver long-term lasting benefit, aids that enable the recipient to eventually improve their lives. जिनको ये सब support मिलती है, they can improve their life, is often required over a number of years, and the benefit may take longer to be visible than the instant result of providing food and shelter, right? वो revenue expense है, food और shelter provide करना. On the other hand, investment of resources to secure the return is an important element of treasury management. क्योंकि फंडिंग आएगी उससे, financial manager must develop a strategy to manage their capital reserve to maximize the income while having regard to the security of the deposit and investment. एक तो रिटर्न भी आए, दूसरा उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं. In public service organization, capital income and capital reserve can only be used for capital expenditure. जो नॉर्मल रेवेन्यू इनकम है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता. दे कैन नॉट बी यूज टू प्लग द गैप्स इन द रेवेन्यू बजट. ठीक है, ये जो कैपिटल रिजर्व और कैपिटल इनकम्स हैं, इनको आप जो शॉर्टफॉल होती है रेवेन्यू बजट में उसके लिए नहीं यूज कर सकते. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैन हाउएवर बी यूज टू जनरेट रेवेन्यू इनकम. हाँ, जो कैपिटल आपका उसको इन्वेस्ट करके उसे रेगुलर रेवेन्यू इनकम जनरेट हो सकती है थ्रू इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट और थ्रू द यूज ऑफ कैपिटल एसेट टू जनरेट रेवेन्यू इनकम. ये जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना लें आप, उससे भी रेवेन्यू इनकम आना शुरू हो जाएगी. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि बेनिफिट डिलीवर हो. लेकिन साथ साथ लिमिट यह है कि कैपिटल इनकम और कैपिटल रिजर्व जो हैं ये यूज हो सकते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए. और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उससे अगर कोई इनकम आए तो उससे आपकी रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है, जिससे अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको आप डिलीवर कर सकते हैं. तो ये सिस्टम में है. और ऑप्टिमल यूज ऑफ एसेट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ this financial management. An example reported by CIPFA is the local government in Luton Council. ये लूटन भी एक टाउन है, लंदन के करीब ही है. इसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि लूटन हैड इन्वेस्टेड इन कमर्शियल प्रॉपर्टी यूजिंग द कैपिटल फंड टू परचेज द बिल्डिंग व्हिच आर लीज्ड ऑन अ फुल रिपेयरिंग लीज. यानी अगर रिपेयर की जरूरत है तो वो टेनेंट ही करवाएगा. So no cost to the council for maintaining the property and using the rent income generated to support the other budget under pressure. कुछ रेगुलर जो उनको ऑब्जेक्टिव है उनके परफॉर्म करने को उसमें वो इनकम यूज होती है. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन इंटरेस्ट जो अर्न कर सकते. अगर उस पैसे को बैंकों में रख देते जो वहां से इंटरेस्ट मिलता वो मच लेस होता. तो आगे बात कर रहे हैं. This contribution to revenue through this commercial property fund was important in the context of reduction in central government grant from 63% of revenue to just reduce हो गई है grant to the 17% of the जो total revenue होता है. तो उसमें ये property से जो income आ रही, that's a helping lot Luton Council. It is entirely the responsibility of individual local council to interpret the legislation and determine the boundary of their activity. किस तरह तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना लेजिस्लेशन देखना क्योंकि उसके अंदर पावर है. वेदर दे वुड बी डीम इंट्रा और अल्ट्रा वायरस. ठीक है ना, इंट्रा वायरस तो होनी चाहिए और अल्ट्रा वायरस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि वो चैलेंजेस हो जाती है.
In the 2023, many council had to face the consequences of the capital investment decision as return on commercial property faced a decline. हाँ, ये भी मसला हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया है नहीं, तो उसके लिए within power, within the limit. Intra-virus is within the permitted by law. Ultra-virus is not permitted by rules, regulation, law. You are exceeding your power. That's what ultra. ठीक है, तो ये हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं कि इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इज रिस्कियर इन्वेस्टमेंट। हाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये स्लाइड करके सब बता रहे हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इज द रिस्क एंड रिटर्न, राइट। उसका मैट्रिक रिटर्न इज रीजनेबली इजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एंड क्वांटिफाई, तो उससे क्या इनकम आ रही है। यू मे रिकॉल योर स्टडी ऑफ IRR, right? IRR is basically return rate in prevalent. Note, however, there are many different ways to calculate and measure the investment return. The concept risk is the context is tricky and different way. एक risk है probability of default. Probability of default कि आपने किसी को पैसे दिए, कहीं इन्वेस्ट किया तो वो डूब जाएगा, मिलेगा नहीं, राइट, लेट मिलेगा, दोनों चीजें हैं, राइट। दैट्स ड्यू डेट पे नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं, मनी बैक नहीं होगी। इसको एक पीरियड के एंगल से देखा जाता है, टाइम हो, यानी विद इन ईयर, विद इन 6 मंथ, विद इन क्वार्टर डिफॉल्ट जो है। और प्राइस वोलेटिलिटी है जो कैपिटल रिडक्शन चेंज इन द प्राइसेस ऑफ एसेट, जैसे बिल्डिंग है, राइट, जैसे आपने शेयर बाय किए हुए हैं, कमोडिटी बाय की हुई है, तो उसमें जो चेंजेस इन प्राइसेस है उसको प्राइस वोलेटिलिटी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए आप इसको वर्कआउट करते हैं। और हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैल्यू एट रिस्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विच मीन मेजर ऑफ द पॉसिबल लॉस a portfolio might या investment might experience because of the change in the prices, right? For example, 5% 1 year VAR mean के there's a 5%, 1 in 20 chance के पोर्टफोलियो में 100,000 का अप एंड डाउन हो गया। अच्छा, वोलेटिलिटी doesn't mean down, could be up as well. Risk doesn't mean the loss, risk mean also the gain, change, that's a risk। ठीक है, तो हम बेसिकली ये करते हैं डिटरमिन कि रिस्क लेवल जो है और रिटर्न लेवल क्या है, जो बहुत बड़ा हमारा फैक्टर है। तो वी आर टेकिंग ब्रेक एट दिस स्टेज, लीव योरसेल्फ लॉग्ड इन, डोंट गो और टेक यानी आउट नाउ, से वी विल बी कमिंग बैक इन 10 मिनट टाइम। टाइम में नमाज पढ़ा देगा आपका मौलवी, चलें।